Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture 6, which I belongs to Unit 1 for VHDL or I also for DSD, and should be following for both ETC CSE 6 semester student, and that is also useful for electrical 6 semester student also. So in my today lecture, I I will be cover the topic, that is entity and architecture declaration with behavioral modeling. Second one, process statement. Third one, variable assignment statement. Fifth one, signal assignment statement. And next one, weight statement. And last one, delta statement. And these are the topic which we can useful either as per the exam point of view or either as per the programming used in your VHDL. So that lecture is very important for you. Behavioral style modeling. What do you mean by behavioral style? So as discussed in my previous video, I tell about what is the modeling used in a VSDL. I will be used three type of modeling. That is, one is called your data flow, second one is structural, and third one is called your behavioral. So the data flow and behavioral type modeling is used with number of statement, either variable or single assignment statement, but the structural type modeling used component instantiation as covered in my previous video. So I told about in my previous video, the behavior modeling is very much flexible as per the two modeling, that is data flow, or you can say structural, because in behavior modeling that give me the information about what is the actual functionality of the circuit work in a particular way. So the behavior style modeling, in this modeling style, the behavior of the entity is expressed using sequentially executed procedural type code that is very similar in syntax and semantics to that of a high level programming language like C or Pascal. It means the behavior style modeling में हम जो है वो सिक्वेंशली स्टेटमेंट को यूज करते हैं. इट मीन्स इसमें जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट होंगी, as in case of your high level programming either in C and Pascal. A process statement is the primary mechanism used to model the procedural type behavior of an entity. In that case, you can use a process statement. By the use of process statement, you can process statement carry a sensitivity list. That sensitivity list carry a group of element where the course to be done. So the process sensitivity list helps uh, to execute the sequentially statement in a order way, or you can say in sequence. So that makes your program is more flexible as per the data flow modeling style. So that behavioral modeling is very much flexible as compared to your data flow modeling style. So this chapter describes the process statement and the various kinds of sequential statement that can be used within the process statement to model such behavior. First, start with your entity declaration of the behavioral modeling. What do you mean by entity declaration? As covered in my previous video, the entity declaration parts give me only the ports information, or you can say interfacing ports information, either input, आउटपुट, इन आउट, और यू कैन से बफर. ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एंटिटी डिक्लेरेशन के बारे में बड़े अच्छे से बताया था. तो एंटिटी में क्या होता है, पहले आप एंटिटी लिखते हो, फिर जिस एंटिटी को आपने बनाना है एज पर दी VHDL प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका नाम लिखोगे. सपोज करो कि आपने एंड गेट बनाना है, तो क्या लिखोगे, एंटिटी एंड गेट इज. देन पोर्ट के अंदर सबसे पहले आपके इनपुट आएंगे, फिर आउटपुट आएंगे. अगर आपने एंड गेट का सिंबल आपको बता, तो एंड गेट के 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं. तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी एज एन इनबिट एंड देन सेमीकोलन क्लोज, देन नेक्स्ट जेड एज एन आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन क्लोज. ठीक है, देन यू कम विद योर एंड एंटिटी नेम. क्लियर? ठीक है, ठीक है. बिगिन व्हेन यूज, वी कैन यूज सम जेनरिक स्टेटमेंट here. ठीक है, generic statement that will be covered in the later part of the video. So up to this, only remember this thing, the entity only contain ports information through which we connected to your external words. So
in which we can enter 4 bit in out and buffer. So in the value of import can only be read within the entity model. Out, the value of the output port can only be updated within the entity model. It cannot be read. In out, the value of bidirectional port can be read and updated both within the entity model. Clear? And buffer, the value of buffer port can be read and updated within the entity model. However, it differs from your in-out mode in that it cannot have more than one source only, and that the only kind of signal that can be connected to another buffer port or signal with most one source. Clear? Next, start with your architecture body. What do you mean by architecture body? The architecture body describe your internal view of entity and how the entity or what is the functionality of that particular entity you can design. Suppose you can design in my previous declaration, that is AND gate. So here we make the architecture for an AND gate. So you can write here architecture AND gate of AND gate is. Clear? That is a standard phenomena to write the architecture in that syntax. क्लियर? आप आर्किटेक्चर के अंदर आप लिखेंगे कैसे? जैसे आपने मान लो सपोज पहले पहले एंटिटी डिक्लेरेशन की, उसके बाद आप उसका आर्किटेक्चर बताते हैं। आर्किटेक्चर में उस एंड गेट की प्रॉपर फंक्शनलिटी का पता चलता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर्किटेक्चर, देन आर्किटेक्चर का नाम, आपने क्या एंटिटी बनानी है, दैट इज एंड गेट ऑफ एंड गेट इज। क्लियर? देन उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम डिक्लेरेशन होंगी। क्लियर? बिगिन के बाद आपकी इसके अंदर concurrent statements हो सकती हैं। concurrent means that should be not occur in a sequential way. Process statement हो सकती है। process that should be carry your sensitivity list and your block statement हो सकती है। concurrent procedural call हो सकती है। concurrent assertion statement हो सकती है। तो इन statements को हम one by one in my later part of the videos में one by one study करेंगे। clear? and last में end architecture name. So the concurrent statement, one is called your concurrent statement, describe the internal composition of the entity. All concurrent statements execute in a parallel and therefore their textual order of appearance within the architecture body has no impact on the implied behavior. Clear? The internal composition of an entity can be expressed in terms of structure, data flow, and sequential behavior. Clear? They are described using concurrent statement. For example, the component instantiations are used to express structure, concurrent signal assignment statement are used to express data flow, and the process statement are used to express the sequential behavior. It means in that case we can clear that कि हम जो concurrent statements होती हैं जिसका कोई order नहीं होता वो हम data flow में यूज करते हैं, और sequential statements हम किस में यूज करेंगे? आपकी behavior model के अंदर, यानी कि here आप कौन सी यूज करेंगे? sequential statement। और उसके बाद जो आपकी component instantaneations हैं, क्लियर, वो आप कहाँ यूज करेंगे? आपकी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर। क्लियर? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम करवाया था जिसके अंदर मैंने इन चीजों को बड़ी बारीकी से बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट विद योर एंड और invert circuit. Here we show the simple example of your AND or invert circuit. We can using two AND gate, one OR gate and one NOT gate. हेलो। सो आप क्या करेंगे? आपने एक एग्जांपल शेयर किया हुआ है, इस एग्जांपल्स के थ्रू आप उसकी इंटरनल आर्किटेक्चर और एंटिटी डिक्लेरेशन के बारे में बड़े बारीकी से देखेंगे। आपने क्या किया? एंटी डिक्लेरेशन फॉर एन एंड और इन्वर्ट सर्किट्स के को डिजाइन करने के लिए बनाई है। जैसे आपका सर्किट में क्या दिख रहा है? आपकी ए बी सी डी एज एन इनबिट एंड जेड एज एन आउटबिट। सो हेयर वी एंटी डिक्लेरेशन पार्ट इज एंटिटी एओआई एंड और इन्वर्ट इज
port A, B, C, D as an in bit and Z as an out bit. Clear? Then AND A, O, I. Then you are come with your architecture part. In that part, you can draw the architecture for that particular entity. Your entity name is AOI with your concurrent statement of AOI. Clear? ठीक है? So also we mention that is not necessary to mention here concurrent. You can only mention architecture AOI of AOI is clear. Then begin में क्या किया आपने? आपके Z को क्या जा रहा है अगर देखा जाए तो Z जो है अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो Z को क्या जा रहा है आपका A एंड B का मल्टीप्लाई और C और D का मल्टीप्लाई पहले OR गेट को जा रहा है, फिर जो OR गेट की आउटपुट है वो आपकी किसको साइन हो रही है, नोट गेट को साइन हो रही है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई की हुई है, नोट ऑफ A एंड B और प्लस का और C और D किसको साइन हो रही है, Z को साइन हो रही है। नेक्स्ट एंड AOI कॉन्करेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की है, सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर कॉन्करेंट वर्ड। क्लियर? ठीक है? अगर आपने उसी को सीक्वेंशियल स्टेटमेंट से बनाना है तो इसमें इसका कोई ऑर्डर नहीं है, हमें नहीं पता कि पहले जो है वो आपका ए और बी एंड होगा या फिर इन दोनों का प्लस होगा या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उसको एक सीक्वेंस में फ्लो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सीक्वेंशियल हम उसी फिनोमिना को सिक्वेंशियल से बनाएंगे। इट मीन्स यू आर came with your behavior model style. Here we can use data flow model style. Clear? तो अगर आपने sequential वर्ड यूज किया है तो आप बिहेवियर के अंदर आ रहे हो, अगर आपने concurrent यूज किया है तो आप डाटा फ्लो के अंदर आ रहे हो। लेकिन डाटा फ्लो में हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसका ऑर्डर क्या है एग्जीक्यूट होने का। क्लियर? सी और डी का एंड हो रहा है या ए और बी का एंड हो रहा है या उन दोनों का और हो रहा है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हमने जिस चीज के ऊपर बार बार इवेंट अकर हो रहा है उसको हमने प्रोसेस के अंदर डाल दिया। इट मीन्स आपका इवेंट एज पर दी फिगर किसके ऊपर अकर हो रहा है, ए बी सी और डी के ऊपर। तो मैंने उसको एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस बना लिया। क्लियर? और मैंने वेरिएबल में टेम्प वन और टेम्प टू टाइप बिट टाइप की दो डिक्लेरेशन प्री डिफाइंड फॉर्म में डिक्लेयर करवा दी। क्लियर? अब टेम्प वन को क्या चाहेगा, अगर देखा जाए इसको उसने क्या बोला है, ए एंड बी सी एंड डी। तो यहाँ उसने एज पर दी फिगर के अकॉर्डिंग ये टेम्प वन है ये टेम्प टू है। टेम्प वन को वैल्यू क्या जा रही है जो कि वैल्यू आगे फिर चेंज हो रही है, सो वी कैन यूज हेयर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? देन टेम्प वन ए एंड बी एंड टेम्प टू सी एंड डी। क्लियर? अगेन टेम्प वन को उसने दोनों को और करवाने के लिए यूज किया हुआ है, लास्ट में उसने उसी टेम्प का नोट कर दिया। क्लियर? ठीक है? ठीक है? एंड लास्ट एंड ए वाई सिक्वेंशियल। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस ऑर्डर से पता चल रहा है कि आपका पहले ए एंड बी होगा, सेकंड में सी एंड डी होगा, फिर दोनों का प्लस होगा, देन लास्ट में जो नोट गेट लगा हुआ है वो क्या करेगा, नोट ऑफ टेम्प वन। इट मीन्स यू कैन एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। दैट इज अ मेन you can say flexible phenomena to represent your program in your VHDL programming. So that phenomena is very much flexible in case of your sequential type programming. Next come with your process statement. So here we also explain your process statement. प्रोसेस स्टेटमेंट में क्या होगा, वो एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर बार बार इवेंट अकर होता है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सेंसिटिविटी लिस्ट or that should be used in your behavior model style. Here we use also the process statement which carry your sensitivity list like A, B, C, D as in your previous program. ठीक है? And also variable signal assignment statement, wait statement, if statement, case loop. That statement should be studied one by one, but only in that case we can use here as per the program. That is your variable assignment statement, or you can say signal assignment statement. So by this lecture we only cover your variable assignment statement and your sequential assignment statement as a part of your sequential, or you can say behavioral type modeling style. नेक्स्ट जिस प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया था उसी को एंड किया विद द लेबल।
Next, I explain the concept of your behavioral modeling with the help of your one program that is called your multiplexers. As we know about your multiplexers, in which we can use 4:1 multiplexer, or either 2:1, or either 16:1, or 8:1. However, it should be designed here. So entity mux multiplexer, आप mux भी शो कर सकते हैं. आपने किसकी अगर देखा जाए तो मक्स की कितनी इनपुट एंटर हो रही हैं, ए बी सी डी. तो आपकी 4 इनपुट्स यहाँ एंटर हो रही हैं. तो उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका आपका एंटिटी यहाँ से डिक्लेयर हो रही है. So that is a part of some library functions which we can use in your VHDL programming, or you can say that should be automatically occur whenever you run the program in your Xilinx softwares. So that's some header file which we can use here. So by the use of header files under which we can cover the programs. एंटिटी में हमने मक्स बनाया है. तो मक्स को हमने ए बी सी डी 4 इनपुट दी हैं. अगर आपकी किसी मक्स की 4 इनपुट्स हैं तो उसके अंदर सेलेक्ट लेंस कितनी होंगी, 2. तो उन 2 सेलेक्ट लेंस को आप डिफर करके भी दिखा सकते हैं, या फिर 1 डाउन टू 0 करके उसकी 2 सेलेक्ट लेंस को शो कर सकते हैं. क्लियर. लास्ट में जिस आपने इस एंटिटी को स्टार्ट किया था उसी एंटिटी को आप मक्स से क्या कर दोगे, एंड कर दोगे. क्लियर. अब आपने उसका आर्किटेक्चर बनाया है किस स्टाइल से, बिहेवियर स्टाइल से. किसका, मल्टीप्लेक्सर इज. क्लियर. प्रोसेस, अब बिहेवियर के अंदर क्या यूज होती है, प्रोसेस स्टेटमेंट यूज होती है. तो प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर वो वाले एलिमेंट आते हैं और वो सेंसिटिविटी लिस्ट होती है जो वो एलिमेंट कैरी करती है जिसके ऊपर बार बार इवेंट अकर हो रहा है. तो मक्स को देखें तो मक्स की 4 इनपुट हैं और 2 सिलेक्ट लेंस हैं और 1 आउटपुट है. तो हर बार इवेंट आपकी इनपुट या सिलेक्ट लेंस के ऊपर अकर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट क्या होती है, जनरेट होती है. क्लियर. तो उसने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज यूज की हुई है. आपको ये पता है कि अगर आपकी 4 इनपुट हैं और 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, तो एज पर द सिलेक्ट लाइंस यू शुड बी select your logic from your input and delivered at your output. Here we use when case select is. आपने select lines को as a case की तरह यूज किया हुआ है. तो अगर case select is when, जब आपकी select lines पे यानी कि S0 S1 दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट को in 1 जाएगा. क्लियर. जब 0 1 है तो आउटपुट को in 2 जाएगा. जब 1 0 है तो आउटपुट को in 3 जाएगा. और जब 1 1 है तब आउटपुट को in 4 जाएगा. एंड रेस्ट ऑफ अदर्स, जिस चीज को आपने स्टार्ट किया था उसको एंड किया. एंड केस, एंड प्रोसेस एंड एंड बिहेवियर, एज यू कैन सी इन योर सी और पास्कल प्रोग्रामिंग. सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी बिहेवियर मॉडलिंग स्टाइल के अंदर सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर लिए. क्लियर. एज पर इन माय प्रीवियस प्रोग्राम यू कैन यूज वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट and also use your case statement, or you can say process statement, in case of your behavior modeling style. So that phenomena which is flexible your program in a more accurate way. So next come with your variable assignment statement, which we can totally cover in my previous slides. So variable assignment statement होती क्या एक्चुअल में, a variable can declared एंड यूज इनसाइड द प्रोसेस स्टेटमेंट. यानी कि जो वेरिएबल होगी वो आपके प्रोसेस के अंदर यूज होगी. जैसे कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है. यहाँ पे मैंने वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज की है जो कि प्रोसेस के अंदर यूज की है. ये वेरिएबल असाइनमेंट दैट इज सिंबल ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट. तो ये प्रोसेस के अंदर है. क्लियर. ठीक है. तो उसने क्या किया, वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको इस तरह से कुछ वैल्यू असाइन होगी, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में यहाँ मैंने आपको दिखाया है यहाँ अच्छे से बड़े. ठीक है. अब उसने क्या किया, the expression is evaluated when the statement is executed and computed value is assigned to the variable object instantaneously, that is at the current simulation time. Clear. Variable are created at the time of elaborations and retain their value throughout the entire simulation run, as in case of your high level language programming. Clear. सो जैसे इसने एक एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है, उसने प्रोसेस के अंदर एक ए टाइप का एलिमेंट एंटर करवाया हुआ है. तो उसको उसने एज ए वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाया हुआ है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. क्लियर. ठीक है. तो अब उस इंटीजर टाइप का जो आपका वेरिएबल है जो कि इवेंट ऑन ए के नाम से है, उसको इवेंट की वैल्यू असाइन हो रही है विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर. यानी कि उसके अंदर आपका +1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और दोबारा से ए को असाइन हो रहा है. क्लियर. तो आपने प्रोसेस पार्ट कैसे हुआ कि अगर ए के अंदर चेंजेस आते हैं, ए के ऊपर इवेंट अकर होता है, तभी वो वैल्यू किसको असाइन होगी, आपके
a को असाइन होगी विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ योर सिमुलेशन. यू कैन से आपने यहाँ बोला था दैट इज योर करंट टाइम सिमुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट विद योर वन अदर एग्जांपल दैट इज here we mention pz प्रोसेस. वेरिएबल के अंदर हमने दो वेरिएबल डाले हुए हैं v1 एंड v2. ठीक है. वेरिएबल v1 को आपने लिखा हुआ है a माइनस v2. ठीक है. और z को लिखा हुआ है माइनस ऑफ v1. क्लियर. विद द हेल्प ऑफ योर दैट इज सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट और दैट इज अ वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट. सो आप ये कह सकते हैं कि आपकी वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है या फिर सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट है दैट शुड बी केम अंडर विद योर प्रोसेस स्टेटमेंट. ठीक है. क्लियर है. दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ योर you can say behavior moldly style. Clear. And signals also very well know about these things. Next is called your signal assignment statement. Signals are assigned value using signal assignment statement. It means आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया होगा ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट को असाइन होगी आफ्टर सम डिले वैल्यू, कुछ डिले के बाद. क्लियर. ठीक है. इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये सिग्नल जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो मेनली हम डाटा फ्लो मोल्डिंग के अंदर यूज करते हैं. और डाटा फ्लो मोल्डिंग आपकी कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है. इट मीन्स उसका कोई ऑर्डर नहीं होता. दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड एट अ डिफरेंट टाइम्स. क्लियर. सो दैट शुड बी, अगर आपने चार स्टेटमेंट यूज की हुई हैं तो चारों स्टेटमेंट जो हैं इन द केस ऑफ योर सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर वो अलग अलग टाइम पे क्या होंगी आपकी एग्जीक्यूट होंगी. सपोज कीजिए एक जो है वो टी एट ए टाइम टी पे हो रही है, नेक्स्ट टी प्लस डेल्टा, थर्ड टी प्लस टू डेल्टा एंड फोर्थ वन टी प्लस थ्री डेल्टा एंड सो ऑन. ठीक है. सो सभी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा डिफरेंट टाइम पे अकर होगा. क्लियर है. अब उसने ये कहा जैसे काउंटर है, काउंटर के अंदर उसने काउंटर को जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसके अंदर ये फाइनल वैल्यू को ऐड करवाया हुआ है. अब इसमें पार जो है वो आपका डीन के साथ एक्सोर हो रहा है आफ्टर 12 नैनो सेकेंड. क्लियर. अब इसके अंदर जैसे आपने ए एंड ए वन किया, बी जीरो बी वन किया, सी जीरो सी वन किया विद द हेल्प ऑफ योर सिग्नल असाइनमेंट ऑपरेटर, बस इसमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा केस पहले होगा, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है. क्लियर. लेकिन आफ्टर 6 नैनो सेकेंड के बाद ये आपको टोटली रिजल्ट दिखा देगा. क्लियर. तो एज मैंने प्रीवियस भी आपको एंड और इन्वर्टर केस में इसका एग्जांपल शेयर किया था पहले, तो आपको एक क्लियर चीज हो गई होगी. नेक्स्ट है कार्डियो डेल्टा डिले. व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा डिले? क्या होता है डेल्टा डिले? A delta delay is a very small delay. It does not corresponding to any real delay, and actually simulation time does not advance. This delay model hardware where a minimal amount of time is needed for a change to occur. For example, in performing your zero delay simulation, delta delay allow for ordering of event that occur at the time of simulation time during simulation. Each unit of simulation time can be considered to be a composed of इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेल्टा डिले. एक्चुअल में हम डेल्टा डिले को जीरो डिले मान के चलते हैं. हमें ये होता है कि जो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं वो विद इन मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग अक्कर हों. जैसे मान लो जो भी सर्किट है उसके अंदर वायरिंग के कारण जो डिले आता है जो भी है तो हम उसको जीरो मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जीरो होता नहीं है. ठीक है. तो सपोज करो कि हमारी चार पांच स्टेटमेंट यूज हुई हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट 15 नैनो सेकेंड, नेक्स्ट 15 प्लस 1a, देन 2a, 3a एंड सो ऑन. जैसे आपने जैसे मान लो डेल्टा डिले कैसे बताया हुआ है उसने कि जो डेल्टा डिले है वो आपका कंसीडर द एआई सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर बॉडी की जो आपने पहले बताई है इसके अंदर एआई, ये वाली बॉडी, ये वाली, सॉरी ये वाली बॉडी. तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4 चार स्टेटमेंट्स हैं. क्लियर. जो कि अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग क्या होंगी आपकी एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि इसके अंदर आपने कौन सा स्टेटमेंट लाइक ऑपरेटर यूज कर रखा है. सॉरी, सॉरी, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो रहा. So, statement 1 is executed first, then temp 1 is assigned to a value immediately since it is variable, and statement 2 is executed next, and temp 2 is assigned to a value immediately. Statement 3 is executed next, which is uses temp 1 and temp 2 computed in a statement respectively to determine the new value of temp 1, and finally the statement 4 is executed that causes
z to get a value of right hand side expression after a delta delay. That is single z gets a value only at a time t plus a. क्लियर? क्योंकि क्या हुआ कि ये सीक्वेंस वाइज थी, तो उसका एक ही लाइक दैट शुड बी क्रिएट विद अ डिले, दैट इज डेल्टा डिले. लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती सीक्वेंस वाइज ना होती तो वो डिले बढ़ता जाता आपका. जैसे मान लो जैसे कॉन्करेंट में वो डिले बढ़ रहा है, लेकिन आपका बिहेवियर के अंदर वही डिले क्या हो रहा है, ओनली टी प्लस ए के नाम से है. क्लियर? ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि इट मीन्स क्या हुआ, जो डेल्टा डिले की वैल्यू है दैट विल बी more in case of your concurrent assignment statement, but in case of your behavioral assignment statement that should be very much less. Clear? ठीक है, so delta delay is a delay that should be not countable, that is approximately equal to your zero delay, but due to wiring or some phenomena that should be added in your circuits, it means your output should be output is occur at the output port after some delay. Next, come with your wait statement. What do you mean by wait? We saw earlier process may be suspended by means of sensitivity list. जैसे मान लो the process has a sensitivity list. It always suspended after executing the last sequential statement in a process. The wait statement provide alternate way to suspend the execution of a प्रोसेस. तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप सपोज करो कि आप रेडी नहीं हो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि प्रोसेस के अंदर जो सेंसिटिविटी लिस्ट आपने डाली है दैट इज नॉट रेडी फॉर for the later part of the programs. So in that case you can create a wait on that particular process statement, or you can say wait on the sensitivity list. Wait until boolean expression या wait for time expression, that is a type of your wait statement. क्लियर? जैसे मान लो अगर आपकी जो आपने बोला है कि प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर आपकी सेंसिटिविटी लिस्ट आती है और सेंसिटिविटी लिस्ट के जो एलिमेंट हैं वो अभी रेडी नहीं है फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. प्रोग्राम के जो लेटर पार्ट है, बाकी का पार्ट है, उसको एग्जीक्यूट करने में वो रेडी नहीं है, तो हम प्रोसेस के ऊपर वेट लगा देंगे, यानी कि सेंसिटिविटी लिस्ट के ऊपर वेट लगा देंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ डिले मिल जाएगा. उस डिले के अंदर आप अपने एलिमेंट्स को प्रिपेयर करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या फिर वेट ऑन बुलियन एक्सप्रेशन पे लगा दिया, या वेट फॉर सम टाइम. क्लियर? जैसे उसने सेंसिटिविटी लिस्ट आपकी क्या है, ए बी सी एलिमेंट है, वेट अंटिल बुलियन एक्सप्रेशन क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, या वेट फॉर 10 नैनो सेकंड, या क्लॉक को आपने 20 नैनो सेकंड के लिए क्या करवाया हुआ, होल्ड करवाया हुआ है, या वेट अंटिल सम इज लेस देन इक्वल टू 100 फॉर 50 मिलो सेकेंड. क्लियर? यानी कि जब तक आपका जो सम है वो 100 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक आप किस में रहोगे, वेट के अंडर रहोगे. क्लियर? तो उसने बोला है इन स्टेटमेंट वन, जो स्टेटमेंट वन है, execution of wait statement causes the, that is a statement 1, process to suspended and then it waits for an event occur on a signal ABC. It means आपके sensitivity list के ऊपर वेट लग जाएगा और ये वेट तब तक करेगा जब तक ABC के ऊपर इवेंट अकर नहीं हो जाता. सेकंड में क्या बताया हुआ है, सेकंड में तब तक वो until the specified condition becomes true. It means when A become equal to, जब तक A equal to B नहीं हो जाता तब तक वो किस में रहेगा, वेट में रहेगा. क्लियर? वेट फॉर 10 नैनो सेकेंड, आपने कुछ टाइम के लिए उसके लिए होल्ड पे लगा दिया, तो अगर आपका मान लो सपोज करो स्टैंडर्ड टाइम टी है, तो अगर स्टैंडर्ड टाइम टी को आपने होल्ड पे लगाना है तो प्रोसेस सस्पेंडेड फॉर 10 नैनो सेकेंड एंड व्हेन सिमुलेशन टाइम एडवांस टी प्लस 10 nano second, the process resume execution from the statement following the wait statement. Clear? Next, fourth, that is called your clock for 20 nanosecond. The execution of statement 4 causes the process to suspended and then it waits the event occur on a signal clock for 20 nanosecond. If no event occur विद इन द 20 नैनो सेकंड, जैसे मान लो क्लॉक को आपने 20 नैनो सेकंड के अंदर फिक्स किया हुआ है, आपने चेक करना है कि जब आपकी क्लॉक 20 नैनो सेकंड के लिए ऑन है तब तक कोई इवेंट अगर आउटपुट चेंज हुई है या नहीं हुई है. तो अगर उस 20 नैनो सेकंड की ड्यूरेशन में कोई चेंज अगर नहीं होता देन द प्रोसेस रिज्यूम एग्जीक्यूशन विद द स्टेटमेंट फॉलोइंग द वेट. ठीक है? एट इन लास्ट स्टेटमेंट द प्रोसेस सस्पेंड फॉर ए मैक्सिमम 50 मिली सेकेंड अंटिल द सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100. Clear? ठीक है? So all these wait statement which we can use in the later part of the video, or you can say for my coming video. So that wait statement, that is a part of your process statement and also use in your behavior modeling style, and that is a most useful statement and that create a useful delay for execution of some operation, either for time, either for boolean expression, either for clock, and either for sum.
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बड़ी यूजफुल है और ये आपकी प्रोसेस के अंदर यूज हो रही है और ये आपका बिहेवियरल का पार्ट है। तो that is I review my total that slides. That is here we describe what do you mean by behavioral style molding, क्या होती है, how it is different from your data flow, you can say structural molding. एंड इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिहेवियर स्टाइल मोल्डिंग ओवर योर डाटा फ्लो एंड बिहेवियर मोल्डिंग, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी डिक्लेरेशन। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यू कैन डिक्लेयर द एंटिटी डिक्लेरेशन विद प्रॉपर सिंटेक्स आल्सो विद वन एग्जांपल्स, क्लियर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आर्किटेक्चर बॉडी, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपने आर्किटेक्चर बॉडी को एक्सप्लेन करना है किसी भी प्रोग्राम की, तो विद एन एग्जांपल। एंड व्हाट इज द फिनोमेना अकर इन योर आर्किटेक्चर बॉडी व्हेन द प्रोग्राम डन विद योर बिहेवियर मॉडलिंग स्टाइल, यानी कि जब आप प्रोग्राम को बिहेवियर मॉडलिंग स्टाइल से बना रहे हो तो उसके अंदर किस तरह के कोज अकर हो सकते हैं। कॉन्करेंट स्टेटमेंट आती है, उसके अंदर प्रोसेस आता है, ब्लॉक आता है, प्रोसीजर कॉल होती है, असर्शन होती है, सिग्नल असाइनमेंट होता है, कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन होती है, जनरेट स्टेटमेंट होती है। तो ये चीज़ों के बारे में डिटेल में हम जैसे जैसे आता जाएगा उसको हम पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। मैंने एक एग्जांपल शेयर किया है आपको एंड और इनवर्ट का, तो उसके अंदर भी मैंने बताया है कि आपका यही एग्जांपल को डाटा फ्लो से कैसे करेंगे और बिहेवियर से कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ ऊपर के पार्ट में आपने कॉन्करेंट वर्ड यूज किया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डाटा फ्लो। हैव यू यूज सिक्वेंशियल, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, क्लियर। तो इसमें हर चीज का एक सीक्वेंस है, बट इन दैट केस वी आर नॉट डिसाइडेड अ सीक्वेंस, आइदर you can done the operation on C and D, or either A and B or A and B or C and D, clear। and what do you mean by process statement, that is a very much important topic for all of the video। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस स्टेटमेंट क्या होती है। प्रोसेस स्टेटमेंट में आपकी एक सेंसिटिविटी लिस्ट होती है, और सेंसिटिविटी लिस्ट जो होती है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर द इवेंट शुड बी अकर। सो प्रोसेस के अंदर आपकी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, वेरिएबल होती हैं, सिग्नल होती हैं, वेट, इफ, केस, लूप, नल, एग्जिट, नेक्स्ट, असर्शन, प्रोसीजर एंड रिटर्न, क्लियर। तो मैंने उसके अंदर वेरिएबल और सिग्नल तो बता दिया और वेट भी बताया आपको, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे जब आप इसके एग्जांपल्स और वीएसएल प्रोग्राम को समझना शुरू करोगे, रीड आउट करना शुरू करोगे, क्लियर। देन एंड प्रोसेस लेबल, then we can share also example with your multiplexers. Here we explain a case word. That case is also came under in your process statement, or that is a part of your behavioral modeling style, and that is a very much useful phenomena which we can use for your multiplexer. And also explain the variable assignment and signal assignment. And last one is called your delta delay एंड योर वेट स्टेटमेंट, क्लियर। तो आपको जो एग्जाम में मेनली क्वेश्चन डेल्टा डिले पे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा डिले, दैट इज approximately equal to 0, and how it is differ for your data flow or your you can say how it differ from your in your data in your in your data flow, or either for your you can say behavior style modeling. In behavior style modeling that is a very much less, but in case of your data flow that is large in as compared to your behavior modeling style. And last one is called your weight statement, and the weight statement is provide it means you can suspend the operation of your sensitivity list for some duration, either that is stand for wait on sensitivity list, or wait on boolean expression, or wait on time. Here we show some example, and that example should be read carefully by use of this part, so that should be clear what is the use of your wait statement in your process statement and also in your behavior modeling style। So that video is very much important for you। एंड मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपके आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। मेनली इसमें क्या आता है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे पर्टिकुलर प्रेसेस वेट, तो आपने हर चीज को उसके सेंटेक्स और विद एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताना है। दैट इज अ वेरी मच इजी वे टू रिप्रेजेंट ऑन योर पेपर। सो लास्ट एंड थैंक्स। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।